4.5 आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, पेज नंबर लिखना था मुझे। पेज नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम किस तरह के क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये समझ लीजिए। अगर आपने 4.4 तक सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ईमानदारी से की होगी, देन आई होप यू आर एबल to solve this exercise 4.5. Anyway, if you tried and done, that's very good. If any problem, so please understand here. In the exercise 4.5, we are doing some special types of the quadrilateral. Some special cases we have given clearly in the 4.5. प्रीवियसली जो भी 4.4 तक जो हमने क्वाड्रिलेटर किए हैं उनका मिला जुला क्वाड्रिलेटर यहाँ पर क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ही हम करेंगे। ये तो मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग। The square reed with RE is equal to 5.1. We have given a square reed. Given in a square reed READ, इसमें मेजरमेंट दिया है आपको RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। As you know that in a square all sides are equal, ये प्रॉपर्टी हुई स्क्वायर की। And related to angle, in a square each angle is 90 degree. Measure of each angle is 90 degree. Then we can draw a rough diagram like that कि स्क्वायर इस शेप में बनना है, साइड दी हमको 5.1 सेंटीमीटर and all sides are equal. We are symbolically showing here each side with a measure of 5.1 centimeter and read READ, every side will be 5.1 centimeter. तो ये हमने रफ डायग्राम बनाया। अब हमको क्या करना है, 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल हम दोनों बना देंगे और 5.1 का इधर 5.1 का इधर आर्क काट के जॉइन कर देंगे। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। सी हियर हाउ वी विल सॉल्व दैट। सी केवल एक 90 डिग्री का एंगल बना के भी हम कर सकते हैं। स्टार्ट। सी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5.1 सेंटीमीटर। This name is RE. Measurement is 5.1 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल हम मेजरमेंट शो करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। एज यूजुअल अभी तक जो हमने किया है, सुंदर दिखना चाहिए हमारा डायग्राम, ब्यूटीफुल बिल्कुल। We will draw here 90 degree angle. How? As you know, we will use the compass and draw, cut an arc of any radius from this point. We cut the arc, it is 60 degree angle. Another arc we will cut 60 plus 60, 120. We bisect this 60 degree angle. One arc from here and another arc from here, and intersecting point join with the E. Got it? And the measure of this angle will be 90 degree. We have taken a point and join this intersecting point with the point E. Without any measure, draw the line segment here. Now we have to take an arc of 5.1 सेंटीमीटर। तो हमें जरूरी है स्केल में मेजर करना
RE को मेजर कर सकते हैं because this is also equal to 5.1 and cut here and R. That is clear, students? From here, this is RE. This point will be A. We can give the name this intersecting point is A. Now from A, cut the another arc here. And the same with the center arc, cut an arc here. Got it? 4 साइड एंड 1 एंगल हो गया ना आपके पास. इस तरह से हमने रीड स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है. दिस इज REA D join DA now join RD with the help of this and READ is the required square. These symbols are showing that the measure of each side equal to 5.1 centimeter. That's all. And this is the 90 degrees already showing it. Each angle is 90 degrees. That's all. Complete. Now question number 2. We are going to see that. Question number 2 is that a rhombus whose diagonal are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long. Given in a rhombus, measurement of its diagonal 5.2 centimeter and 6.4 centimeter. Diagonal D1 is equal to 5.2 centimeter and D2 is equal to 6.4 centimeter. Students, as you know that in a rhombus also all the sides are equal and opposite angles are equal, but diagonals are not equal, but they are perpendicular and bisect to each other. The diagonals of the rhombus are perpendicular and bisect to each other. ये प्रॉपर्टी हमें मालूम होगी तो ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसलिए प्रॉपर्टी हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में रहना चाहिए. रिलेटेड टू साइड, रिलेटेड टू एंगल एंड रिलेटेड टू डायगोनल्स. तीनों बेसिस पर. We can write here. We know in a rhombus all sides are equal and diagonals are perpendicular bisect to each other. तो जब डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी तो हम डायगोनल ही ड्रॉ करेंगे. कोई सी भी डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए. पहले 6.4 सेंटीमीटर के डायगोनल हमने मान लीजिए ड्रॉ की, तो 6.4 का मैं जस्ट डबल करूंगा. देखिए अब मैं नाम दे सकता हूं. जैसे डायगोनल मान लीजिए हमने ए बी सी डी दिया, तो ए सी डायगोनल होती है. इसको मैंने नाम दिया ए सी. ये डायगोनल ए बी नहीं दे सकते, अपोजिट वर्टेक्स रहते. मान लो यहाँ ए होता है, बी होता है, सी होता, तो ए सी डायगोनल कितने सेंटीमीटर है? 6.4 सेंटीमीटर. गॉट इट? अभी मैं इसकी मेजरमेंट की लाइन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो डायगोनल 20 लगेगा आपको. अब हम इसका डायगोनल का क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. क्योंकि रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस लाइन का आधे से ज्यादा रेडियस लेकर किसी भी सेंटर से 1 आर्क अबव एंड 1 आर्क बिलो हमने कट किया. सेम प्रोसेस फ्रॉम अनदर सेंटर विद सेंटर ए. ओके, like that. Now those intersecting point we are getting, we join them. We join the intersecting points. Take here one dot and one dot. Join the intersecting point. अभी हम कुछ भी नेम नहीं देंगे.
और ये जरूरी नहीं कि आप यहीं से आप ऊपर तक लाइन ले लीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब वी हैव अनदर डायगोनल लेंथ इज 5.2, तो 5.2 का हाफ कितना होगा बेटे? 5.2 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2.6 क्या होगा? 2.6, तो 2.6 का डबल है तो यही लूंगा 5.2। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट O को सेंटर लेकर 1 आर्क अबोव एंड 1 आर्क बिलो हमने कट कर दिया। अब ये जो दो इंटरसेक्टिंग आर्क हमको मिले हैं ना बेटा, दिस वन एंड दिस वन, इनको नाम दे दीजिए A, तो यहाँ आएगा B, this point is known as B, okay, C, and this point is known as D. Now join it AB, AC, CD, and D. As you know that in a rhombus all sides are equal, it will be equal, and this is diagonal perpendicular bisect to each other. The intersecting point is O. This line OD is equal to OB. Similarly, OC is OA is equal to OC. Got it? और side equal है इसे, all the sides are equal. सिंगल लाइन वाली सिंगल लाइन की इक्वल है, डबल लाइन वाली डबल लाइन की इक्वल है। इस पर आप ट्रिपल लाइन दे सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल है, हमने कुछ किया नहीं इसमें। Got it? बट ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर। और इसमें आप मेजरमेंट लिख दो, दिस इज 5.2 और 5.2 का मेजरमेंट लिखने के बाद इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से यहां तक 5.2। Got it बेटा? ये 6.4 प्लस 1 ये लाइन 5.2 30 ये 5.2 ओके। और ये मैंने सिंबॉलिक आर्क नहीं है, ये समझ में जाना आर्क है, याद रखिए। वेरी क्लियर। और 6.4 यहां से यहां तक अच्छा है, इसका भी मेजरमेंट ले सकते। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख ही लेंगे आप, दैट इज ओवर। इस तरीके से आपको इनके स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल इसीलिए बोला है बेटे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अ रेक्टेंगल विद ऑल एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक और डायगोनल रेक्टेंगल का जब आप बनाएंगे तो एडजेसेंट साइड आपको दी है, रेक्टेंगल है, हमने ABCD नाम दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का उदाहरण, ABCD। इसमें एडजेसेंट साइड मतलब ये दो साइड या ये दोनों कितने सेंटीमीटर दी है? 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे, फिर यहां से 5 सेंटीमीटर लेंगे और यहां से आर्क यहां कट करेंगे, ठीक। फिर 4 सेंटीमीटर का लेकर यहां कट करेंगे। These two sides will be equal, these opposite sides will be equal। इस मेथड सेम स्क्वायर बनाया था वैसा ही बनाना है। एंड लास्ट क्वेश्चन 4, a parallelogram OK whose OK is equal to 5.5 centimeter, KA is equal to 4.2 centimeter, is it unique? क्या ये यूनिक है? तो वो बनने के बाद आप बताएंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। इन ए पैरेललोग्राम ऑल द साइड्स आर opposite sides are equal and parallel, okay, like that। in that manner parallelogram will be constructed, ठीक। PQRS समीकरण नहीं ओके नाम दिया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है O
equal to 5.5 centimeter and Ka is equal to 4.2. OK is equal to 5.5 centimeter and Ka is equal to 4.2 centimeter. That is clear? In a parallelogram, opposite sides are equal. अब आप इसमें देखिए, a parallelogram OK where OK is equal to 5.5 centimeter and Ka is equal to 4.2 centimeter. It is unique. क्या है unique है? आप इसका ये तो बता ही सकते हो कि opposite sides are equal in a parallelogram and parallel. ठीक, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम क्लास में करेंगे। इसमें कुछ चीज में छिपा रहा हूं, आपका भी तो दिमाग देखूंगा मैं, क्योंकि आपने कितना सीखा। और ये फिर कॉपी में नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड दैट इज फोर्थ। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।